حضرات، وسیم رضوی جانور نے، پاگل نے، دیوس نے، مکار نے، عیاش نے پھر میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ وسیم رضوی جو کہ خود عیاش ہے، بدکار ہے، زناکار ہے، دنیا کا پجاری ہے، حریص ہے، وقت کا شیطان ہے، اس نے پھر میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ میری آواز اگر اس ظالم تک پہنچے تو میں محمد ذکر اللہ قادری محب رسول یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تو کہتا ہے کہ محمد عربی نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے مال کے لالچ میں نکاح کیا تھا۔ ارے او شیطان، تو یہ باتیں لاتا کہاں سے ہے؟ کس کتاب کے حوالے سے تو یہ بات کر رہا ہے؟ ظالم، تو لوگوں کو بدزن کرنا چاہتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملک شام کے سفر سے واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے غلام میسرہ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو میرے نبی کے خصائل، شمائل، فضائل، کمالات، معجزات، محاسن، اخلاق، صداقت، عدالت، سخاوت کا ذکر کیا۔ جب میسرہ نے میرے نبی کے محاسن کا ذکر کیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی طرف سے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام نکاح بھیجا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نکاح کی خواہش ظاہر کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کا پیغام بھیجا، نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہی حق ہے اور یہی سچ ہے۔ تاریخ کی تمام کتابوں میں، حدیثوں میں یہ صداقت موجود ہے، لیکن تو ظالم دنیا کو بدزن کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اور تو کہتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد لوگ مال کے لالچ میں اسلام کی طرف آ رہے تھے، لوگ دولت کی خواہش میں اسلام کی طرف آ رہے تھے۔ تو یہ جانتا نہیں ہے کہ میرے نبی کی شان بے نیازی کا عالم تو یہ ہے کہ الفقر و فخری، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ فقیری میں میں فخر محسوس کرتا ہوں، فقیری میں میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ ارے وسیم رضوی، میرے مصطفیٰ کی شان، وہ شان کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میں اشارہ کر دوں تو یہ پہاڑ سونے چاندی کے بن جائیں، میرے پیچھے پیچھے چلیں، لیکن مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے ثروت نہیں چاہیے۔ الفقر و فخری، فقیری میں میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ اور آج بھی میرے نبی کی جو اولاد، جو حسینی سید، حسنی سید پوری دنیا میں موجود ہیں، بالخصوص اجمیر شریف میں جا کر دیکھ لو، مارہرہ شریف میں جا کر دیکھ لو، مارہرہ شریف میں حضور سید امین میاں کو دیکھ لو، امین ملت کو دیکھ لو، حضور سید نجیب میاں نجیب ملت کو دیکھ لو، اجمیر شریف میں جا کر وہاں کے سجادہ نشین کی سخاوت کو دیکھ لو۔ لنگر غریب نواز آج بھی جاری ہے، لنگر حسنین کریمین آج بھی جاری ہے۔ آج بھی میرے نبی کے خاندان کے افراد کی شان تو یہ ہے کہ خود نہیں کھاتے ہیں، اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ جو لوگ میرے نبی سے قریب ہو جاتے ہیں، جن کو میرے نبی سے نسبت ہو جاتی ہے، وہ بھی دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ مال اور دولت کے لالچ میں لوگ اسلام سے قریب ہو رہے تھے، تو میں تم سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے پوچھتا ہوں، یہ بتا کہ آج کی تاریخ میں یورپ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب کون سا مذہب ہے؟ ایشیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا دین کون سا دین ہے؟ آج عیسائی، یہودی اور دیگر مذاہب کے لوگ سب سے زیادہ کس دین کی طرف لوٹ رہے ہیں، کس دین کو قبول کر رہے ہیں، کس مذہب کو قبول کر رہے ہیں؟ تو بھی اس بات کا اعتراف کرے گا کہ دین اسلام اپنی صداقت اور اپنی سچائی کی وجہ سے پوری دنیا میں پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، پھیل رہا ہے۔ یورپ میں سب سے زیادہ اسلام پھیل رہا ہے۔ یورپ کے ان رئیسوں، زمینداروں، ارب پتیوں، کھرب پتیوں کو آخر دولت کی لالچ ہے کیا؟ دولت کے لالچ میں وہ لوگ اسلام
से करीब हो रहे हैं। नहीं नहीं, यूरोप के वो लोग जैसे जैसे उनकी इल्मी लियाकत बढ़ती जा रही है, वो जब तकाबुल अदियान करते हैं तो सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे बरतर और सबसे अच्छा दीन दीन इस्लाम नजर आता है और वो दाखिल इस्लाम हो रहे हैं। तू यति नरसिंहानंद सरस्वती के साथ बैठकर मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, गालियां दे रहा है, मेरे नबी को बुरा भला कह रहा है, कुरान शरीफ के खिलाफ तहरीक चला रहा है, हदीस शरीफ के खिलाफ तहरीक चला रहा है और पूरी दुनिया खामोश है। तू मरे हुए कुत्ते की तरह खा खा कर फूल रहा है, मरे हुए कुत्ते की तरह खा खा कर फूल रहा है और अय्याशी तेरी कम नहीं हो रही है। तेरी पुष्ट पनाही जो लोग कर रहे हैं हम खूब जानते हैं और इस खुशिया बरदारी और चापलोसी और चमचागिरी का जो मकसद है, चमचागिरी का जो मकसद है वो हम जानते हैं। तेरा मकसद है कि तू महफूज भी रहे और तू अय्याशी भी करता रहे, तो तेरी पुष्ट पनाही हुकूमत की तरफ से हो रही है, इसलिए तू कुरान शरीफ के खिलाफ बोल के भी बच जाता है, हदीस शरीफ के खिलाफ बोल के भी बच जाता है। मुसलमानों की जाने कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ तू बकवास करके भी तू बच जाता है। वरना सुन, हम सुन्नी मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम, हम वो गुलाम हैं कि हल्क पे तीर रहे, सीने पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे। सुन, हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने नबी के नामूस की हिफाजत के लिए, शान और अजमत की हिफाजत के लिए हर सुन्नी अपनी जान का नजराना पेश कर सकता है, हर सुन्नी अपनी जान का नजराना पेश कर सकता है। वसीम रजवी जालिम तक अगर ये आवाज़ पहुंचे तो मैं बताना चाहता हूं, कान खोल कर सुन ले कि हम अपने नबी के नाम पर अपनी गर्दन का नजराना पेश कर सकते हैं। नाम पर आला हजरत मुहिब रसूल, आशिक रसूल इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने फरमाया था कि हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हम सिर्फ नामे मुस्तफ़ा पे गर्दन का नजराना पेश करने वाले लोग हैं, हम नामे मुस्तफ़ा पे हंसते हंसते अपनी जान पेश करने वाले लोग हैं। लिहाजा तू कहता है कि जैसे जैसे लोग तालीम से करीब होंगे, कुरान से करीब होंगे, हदीस से करीब होंगे, वो इस्लाम से मुतनफ़िर हो जाएंगे। ये तेरा ख्याल खाम है, ये तेरा ख्याल खाम है और तू भी जानता है कि हकीकत क्या है। हकीकत तो ये है, सुन, हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी मेरे नबी की तारीफ करते हैं, वो भी मेरे नबी की तारीफ करते हैं, मेरे नबी की अमानत, सदाकत, अदालत, सखावत का एतराफ़ करते हैं। कई तकरीरें उनकी हम लोगों ने सुनी, वो भी मेरे नबी की तारीफ करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो भी मेरे नबी की तारीफ करते हैं। तो तू क्या मुख्यमंत्री से ज़्यादा काबिल है? तू से ज़्यादा पढ़ा लिखा है? तू हमारे प्रधानमंत्री से ज़्यादा पढ़ा लिखा है? तू हमारे प्रधानमंत्री से ज़्यादा काबिल है? वो हमारे नबी की तारीफ करते हैं, हमारे नबी की अजमत को तस्लीम करते हैं और तू सबको बदजन करता है, मेरे नबी को गालियां देता है। गांधी जी ने हमारे नबी की तारीफ की, अंबेडकर जी ने हमारे नबी की तारीफ की। और सुन, हिंदुस्तान के जितने पढ़े लिखे दानिश्वर हजरात हैं वो सब मेरे नबी की तारीफ करते हैं और हमारे नबी की अमानत व सदाकत और सादिकुल अमीन होने को तस्लीम करते हैं। डॉक्टर माइकल हार्ट, ये यहूदी डॉक्टर, यहूदी, उसने पूरी दुनिया में घूम घूम कर 100 लोगों के नाम की लिस्ट बनाई और उन 100 अफराद पर एक किताब लिखी, 100 अफराद की सीरत लिखी, जीवनी लिखी। वो लोग जो कौमी, मिली, फलाही, समाजी काम कर चुके और जिनका इस दुनिया में नाम है, शोहरा है और जिनके मानने वाले लोग हैं, ऐसे 100 लोगों के नाम की लिस्ट बनाकर एक किताब लिखी। और वसीम रिजवी जानी और अय्याश, सुन, डॉक्टर माइकल हार्ट ने 1 नंबर पर हमारे नबी का नाम रखा। हमारे नबी मक्की आका, मदनी आका, नूरुन आला नूर, प्यारे हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम डॉक्टर माइकल हार्ट ने 1 नंबर पे रखा। जब इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने
मुसलमानों के पेशवा का नाम एक नंबर पे क्यों रखा, वजह क्या है? तो डॉक्टर माइकल हार्ट ने इंटरव्यू में बताया कि मैंने तमाम लोगों की ज़िंदगी पढ़ी है, लेकिन मोहम्मद अरबी की ज़िंदगी पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मोहम्मद अरबी हर लिहाज से बेमिसाल है, लाजवाब है। बचपन बेमिसाल है, जवानी बेमिसाल है, उनकी मक्की ज़िंदगी बेमिसाल है, उनकी मदनी ज़िंदगी बेमिसाल है, उनकी सदाकत बेमिसाल है, उनकी अदालत बेमिसाल है, उनकी सखावत बेमिसाल है, उनकी शुजात बेमिसाल है, उनकी अमानतदारी बेमिसाल है, उनकी दियानतदारी बेमिसाल है, उनका अखलाक हसना बेमिसाल है, उनकी हर अदा बेमिसाल है, उनकी हर अदा बेमिसाल है। डॉक्टर माइकल हार्ट ने इंटरव्यू में कहा कि मोहम्मद की तरह न कोई आया है न आएगा। तो क्या तू डॉक्टर माइकल हार्ट से ज़्यादा काबिल है? डॉक्टर माइकल हार्ट से ज़्यादा पढ़ा लिखा है? पूरी दुनिया मेरे नबी की अजमत को तस्लीम करती है और जालिम तू है कि जंगली सूअर की तरह आज़ाद घूम रहा है और तू मेरे नबी को बुरा भला कह रहा है। तू मेरे नबी को बुरा भला कह रहा है और तेरे पीछे जो हाथ है, जिस हाथ की वजह से, पुष्टपनाही की वजह से तू बचा हुआ है और तू बकवास कर रहा है, तू दुनिया में भी जलील है और आखिरत में भी तू जलील होगा। तू दुनिया में भी जलील है और आखिरत में भी जलील होगा। तू कहता है न मैं मुसलमान हूँ और न मैं शिया हूँ और न मैं हिंदू हूँ, मैं इंसान हूँ। इंसान, ये तेरा जुमला है कि मैं न शिया हूँ न हिंदू हूँ, न मैं शिया हूँ न हिंदू, मैं इंसान हूँ। और तू जहाँ बैठा है नरसिंहानंद सरस्वती के साथ, तो नरसिंहानंद सरस्वती का कहना है कि मैं हिंदू हूँ और तू कह रहा है कि न मैं शिया हूँ न हिंदू, मैं इंसान हूँ। तो नरसिंहानंद को पूछना चाहिए कि तू न मुसलमान है न तू हिंदू है, तू इंसान है, तो कम से कम नरसिंहानंद को कहना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ, तू भी हिंदू बन जा। कम से कम ये तो कहना चाहिए। नरसिंहानंद को ये कहना था कि मैं हिंदू हूँ, तू भी हिंदू बन जा। तू नरसिंहानंद की आंख में भी धूल झोंक रहा है। अगर इंसान ही होना काफी था, कि तू इंसान है और इंसान होना काफी था, तो नरसिंहानंद से बोल के तू हिंदू जो अपने नाम के साथ लगा के रखता है, ये हिंदू जो टाइटल है ये ख़त्म कर दे और बोल के न मैं हिंदू हूँ और न कोई दूसरी कौम से हूँ, मैं सिर्फ इंसान हूँ, इंसान इंसान हूँ, इंसान। ऐसा वो बोल सकता है क्या नरसिंहानंद? पता ये चला कि तू कहता मैं इंसान हूँ, वो कहता मैं हिंदू हूँ। तू उसकी नज़र में ही काबिल नहीं है, तू उसकी नज़र में ही घटिया है, घटिया। जिस नज़रिए को वो तस्लीम करता है, जब तू उस नज़रिए को तस्लीम नहीं करता तो तू उसके मुआफिक न हुआ, तू उसका मुखालिफ हुआ। लिहाजा मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करना छोड़ दे। तेरे खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में FIR दर्ज कराया गया, पूरे हिंदुस्तान में तहरीर दी गई, लेकिन तू जंगली सूअर की तरह आज़ाद घूम रहा है और मरे हुए कुत्ते की तरह खा खा कर फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है। तेरी तमाम तर सच्चाई शिया के बड़े बड़े उलमा ने मीडिया के सामने पेश कर रखी है। तेरे लिए अब कोई राह फरार नहीं है और तू चाहता है कि मुसलमानों का दिल दुखाया जाए और मुसलमानों का दिल दुखा करके एक गिरोह में रहकर, एक ग्रुप में सुरखुरू बनकर काम चलाया जाए। तेरा यही मकसद है, तेरा यही मकसद है। सुन, अज़मत मुस्तफ़ा पे न कभी आँच आई है न आएगी, और कान खोलकर सुन ले के इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। और नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। तू कहता है कि लोग अगर कुरान के करीब हो गए और कुरान पढ़ कर अगर कुरान के आलिम हो जाएंगे तो कुरान से नफ़रत करने लगेंगे, इस्लाम से नफ़रत करने लगेंगे। अरे जालिम, बेशुमार ऐसी ख़बरें हैं कि ईसाइयों ने अपने मदरसों में अपने बच्चों को 15-15 साल कुरान और हदीस की तालीम इस मकसद से दिलवाई कि वो मुसलमानों के मुल्कों में जाकर ईसाई मज़हब की तबलीग करें और इस तरह से मुसलमानों को मशकूक करके ईसाई बनाएं। ऐसे बेशुमार नौजवान तैयार किए ईसाइयों ने, यहूदियों ने। लेकिन बेशुमार नौजवानों की ये न्यूज़ हम तक पहुंची कि जब 15 साल, 12 साल, 16 साल तक उन्होंने कुरान पढ़ा, हदीसें पढ़ी, तफसीर पढ़ी और इस्लाम की सच्चाई जब उनके सामने आई, तो जो लोग ईसाई मुबल्लिग थे वो माशाअल्लाह
कलमा पढ़कर मेरे नबी के गुलाम बन गए। और उनका ये इंटरव्यू आज भी मौजूद है कि हम तो ईसाई मजहब की तबलीग के लिए तैयार किए गए, लेकिन कुरान और हदीस से करीब होने के बाद हमारे सामने ये सच्चाई आई कि कायनात में, दुनिया में सबसे अच्छा मजहब मजहब इस्लाम है, सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है, सबसे अच्छी किताब कुरान शरीफ है, सब नबियों में सबसे बेहतर अफजल आला नबी मोहम्मद अरबी हैं, और तमाम उम्मतों में सबसे अफजल और बेहतर उम्मत उम्मत मोहम्मदिया है। ये उन लोगों की बातें हैं जिन्हें इस्लाम को मिटाने के लिए तैयार किया जा रहा था, इस्लाम को मिटाने के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्हें खुद नूर हिदायत मिल गया, उन्हें खुद दौलत ईमान मिल गई, और वो आज खुश हैं। यूरोप में, एशिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फैलने वाला दीन दीन इस्लाम है। अहबाब से गुजारिश है, मेरी इस आवाज़ को आगे तक पहुँचाइए, मेरी इस आवाज़ को आगे तक पहुँचाइए। अहबाब से गुजारिश है कि आप मेरी इस पेज को भी लाइक कीजिए। मेरा मकसद है कभी कभी हाजिर हो जाऊं, और ज़रूरी बात हो तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझकर, जी हाँ, नियाबत रसूल की टोपी मेरे सर पे है, तो जो मेरी ज़िम्मेदारी है वो ज़िम्मेदारी समझकर मैं लोगों तक पहुंचाऊं। तो आप लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। बहुत दिनों के बाद मैं हाजिर आया हूं। मैं इसलिए भी हाजिर नहीं होता हूं कि पेज लाइक करने वाले लोग चंद हैं, सुनने वाले भी चंद होते हैं, आवाज़ भी चंद लोगों तक ही पहुंचती है। आप इसे फैलाएं। मैंने इतनी बात कही, आप कम से कम मोहब्बत रसूल का जो तकाज़ा है, उन तकाज़ों में एक तकाज़ा ये समझें कि इस आवाज़ को आगे तक फैलाएंगे। ये भी मोहब्बत रसूल का ही तकाज़ा है। आवाज़ आगे बढ़ाएं। अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम।